ملتان میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی پرامن ہڑتال کا نواں روز جاری۔ مال بردار ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بدستور مکمل طور پر معطل۔ ٹرک اور مزدہ اڈے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا۔ گاڑیاں اڈوں تک محدود۔ وہیکل آرڈیننس واپس لیے بغیر گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ ٹرانسپورٹرز کا واضح موقف۔ آپ کو بتائیں ملتان میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی پرامن ہڑتال کا نواں روز۔ مال بردار ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بدستور مکمل طور پر معطل۔ ٹرک اور مزدہ اڈے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا۔ گاڑیاں اڈوں تک محدود۔ وہیکل آرڈیننس واپس لیے بغیر گاڑیاں نہیں چلیں گی۔ ٹرانسپورٹرز کا واضح موقف۔ اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے وسیم شہزاد۔ آپ کو بتائیں گے ملتان میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی پرامن ہڑتال کا نواں روز جاری ہے۔ مال بردار ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بدستور مکمل طور پر معطل ہے۔ ٹرک اور مزدہ اڈے ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے۔ گاڑیاں اڈوں تک محدود۔ وسیم شہزاد نے جوائن کیا۔ وسیم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو شہر ملتان کے اندر بھی ہمیں ٹرانسپورٹرز کے ہڑتال جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور آج اس کا نوواں روز ہے۔ نویں روز بھی جو سبزی منڈی کی بات کرتے چلیں، غلہ منڈی کی بات کریں یا ٹرک اڈے کی اور اس کے ساتھ ساتھ باولپور بائی پاس پر متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ تاحال ہڑتال پر ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کے لیے جہاں مشکلات کا سامنا ہے وہیں پر ہمیں بقیہ لوگ بھی جو ہے وہ اس وقت حوالے سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو اس وقت جو ہے وہ ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے، نعرے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ جب تک منظور نہیں کیے جائیں گے ہڑتال اسی طریقے سے جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس وقت بھی اگر ہم بات کرتے چلے تو یہ ٹرک ڈرائیور اپنے پیچھے ٹرکس کو کھڑا کرنے کے بعد آگے احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ نائب صدر ہیں میرے ساتھ آل ملتان مزدہ ایسوسی ایشن کے۔ سر کیا کہیں گے، آج نوواں روز ہے، کتنی مشکلات کا سامنا ہے، گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہم جی بڑے پریشان ہیں کیونکہ اسی طرح ہمارے چلان ہو رہے ہیں، اسی طرح ہماری گاڑیوں جو ہے نا وہ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ جو بھی افسر گاڑی پکڑتا ہے جی وہ کہتا ہے جی ہم نے پرچہ دینا یا 10,000 15,000 کا چلان۔ ہمارے تو ڈرائیور جو ہے نا تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کوئی ڈرائیور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے 10,000 ہماری اپنا کرایہ ہوتا ہے، 15 سے 20,000 ہمارا چلان، ہم کہاں جائیں، ہمیں بتاؤ۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ بات کرتے چلے جوائنٹ سیکرٹری جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ورک صاحب کیا صورتحال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت ٹرانسپورٹ جو ہے کس بدحالی سے گزر رہی ہے، کیا معاشی کیفیت ہے ٹرانسپورٹرز کی، ڈرائیورز کو کیا کہنا ہے؟ پیچھے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی ٹرکس جو ہیں وہ کھڑے ہیں تاحال، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری 9 روز سے گاڑیاں کھڑی ہیں اور جب تک حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم ایسے 1 مہینہ کیا 2 مہینے کے لیے بھی کھڑی کر دیں گے، کیونکہ ہمیں اتنی بچت نہیں ہوتی۔ گاڑی لے کے جاتے ہیں 3,000 ہماری بچت ہوتی ہے، 10,000 15,000 ہمارے چلان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی ریکویسٹ کریں، ان کی منت سماجت کریں تو وہ ہمارے ڈرائیورز کو بند کر دیتے ہیں، گاڑیاں بند کر دیتے ہیں، جن سے ہمیں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ہمارا روزگار یہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے مطالبات مانیں، جو انہوں نے ناجائز ہمارے اوپر چلان رکھے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں تاکہ ہمارا دوبارہ پہیہ چل سکے۔ اس لیے پہیہ چلے گا تو اس سے ایک بندہ نہیں پوری معیشت چلے گی، پورا ملک چلے گا، اس سے پورا ملک بند ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہمارے جو ناجائز چلان ہے، خاص کر جو دھوئیں کا چلان کرتے ہیں نا، وہ بہت ناجائز ہے۔ اگر ہم نے اپنے کاغذات پورے کر لیے ہیں، ہم نے پاسنگ، روٹ پرمٹ، گاڑی کا رجسٹریشن، ہر چیز اوکے ہے، ڈرائیور کا لائسنس اوکے ہے، لیکن انہوں نے پھر دھوئیں کا چلان کر کے 2,000 3,000 5,000 کا چلان کر دینا۔ مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہڑتال ہماری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ مانے نہیں جاتے، کیونکہ اس تمام تر صورتحال میں جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اسی لیے یہ لوگ نئے وہیکل ایکٹ کے خلاف۔ بہت شکریہ وسیم شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں ملتان میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی پرامن ہڑتال کا نواں روز ہے۔ مال بردار ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بدستور مکمل طور پر معطل۔
ट्रक और मजदा अड्डे वीरानी का मंजर पेश करने लगा। गाड़ियां अड्डों तक महदूद हो गईं। व्हीकल ऑर्डिनेंस वापस लिए बगैर गाड़ियां नहीं चलेंगी। ट्रांसपोर्टर्स का वाज़ेह मौक़िफ़ है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है। मुल्तान में माल बरदार ट्रांसपोर्ट नवे रोज भी मुअत्तल। ट्रक और मजदा अड्डे खाली, गाड़ियां अड्डों तक महदूद। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात में ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। व्हीकल ऑर्डिनेंस की वापसी तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। ट्रांसपोर्टर्स का यह कहना है। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल महीनों जारी रखने का ऐलान। आगे बढ़े, आपको पता है हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने डीजल की कीमत में कमी को खुशआइंद करार दिया। कहा डीजल की कीमत में कमी से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी। आपको अपडेट करें, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी है। मजीद तफसीलात जानेंगे। महमूद जहीर ने ज्वाइन किया है। महमूद, बताइएगा शहरियों के इस हवाले से क्या कहना है? मामला देख रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? डीजल की कीमतों में कमी हुई है। डीजल की कीमतों में कमी हुई है जी। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है ये नून लीग की हुकूमत की तरफ से। ये हर आवाम खुश है कि ये गाड़ियों वाले भी, इनमें भी किराए कम हो रहे हैं। ये सारा अपना सहूलियात आवाम के लिए है। सी बात है जी। सर, आप क्या देखते हैं इस डीजल? जी बिल्कुल, डीजल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं डेफिनेटली उनका ताल्लुक जो है वो पब्लिक के साथ भी है, स्पेशली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से है। तो ये बड़ा खुश आइंद है। और जहां पर ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, फार्मर से रिलेटेड मामला हैं, तो वहां पर भी डेफिनेटली जो है डीजल से चलने वाले जो है ट्रैक्टर्स के मामला हैं या इस तरह के हैं, तो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है डेफिनेटली कि डीजल के प्राइस कम होंगे। शेख और नोश यानी खाने पीने की अशिया भी ट्रांसपोर्टेशन, बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के साथ आती है, तो उसमें क्या देखते हैं? उसमें इंशाल्लाह सस्ती होंगी बिकॉज ऑफ डीजल की प्राइस पहले काफी हाई थी और हमारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डीजल इंजन वाली गाड़ियों पे ही होती हैं। सो दैट्स वाई ट्रांसपोर्टेशन की फेयर्स में काफी रिडक्शन है कि विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस आल्सो एंड परचेजर आल्सो। मुसाफिरों के लिए भी कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई किराए कम होंगे? यकीनन मुसाफिरों के लिए भी किराए कम होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन तमाम फैसलों को हम खैर मकदम करते हैं। इनका ये फैसले बहुत ही खुशाइंद होते हैं और पब्लिक की भलाई के लिए ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपका साथ देने का शुक्रिया। अभी आप सुन रहे हैं, लोगों को कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही सारे अशिया खौर व नोश को पहुंचाया जाता है, तो भारी ट्रांसपोर्टेशन डीजल से चलती है। डीजल के किरायों में बड़ी कमी, 14 रुपए लीटर की जो कमी की गई है, इसके खुश आइंद असमरात देखने को मिलेंगे मुआशरे पर। और मुसाफिरों को भी बड़ी अच्छी खबरें मिलेंगी आज ही में कि उनके किराए कम कर दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने डीजल की कीमत में कमी को खुश आइंदा करार दे दिया। कहा डीजल की कीमत में कमी से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी हुई है। 14 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर। डीजल की कीमत में कमी से किरायों में कमी मुतवक्के है। आपको पता है हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने डीजल की कीमत में कमी को खुश आइंद करार दिया। कहा डीजल की कीमत से कमी से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी। आपको पता है हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी, 14 रुपए फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर। डीजल की कीमत में कमी से किरायों में कमी मुतवक्किल है। आपको अपडेट करें, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने डीजल की कीमत में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा डीजल की कीमत में कमी से ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आएगी। आपको अपडेट करेंगे डीजल और पेट्रोल की कीमत के हवाले से। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी है, 14 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर। डीजल की कीमत में कमी से किरायों में कमी मुतवक्किल। आपको बताया हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने डीजल की कीमत में कमी को खुशाइंद करार दिया। रहीम यार खान के महंगाई से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी है। क्रशिंग सीजन शुरू होते ही चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी। सिर्फ एक हफ्ते में चीनी की फी किलो कीमत में 20 रुपए सस्ती हुई। मार्केट में अब चीनी की क्या कीमत है? रहीम यार खान से ज्वाइन किया है आमिर भट्टी ने। आमिर, बताइएगा।
इमरान खान में चीनी की महंगी कीमतों से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी है कि चीनी की कीमतों में वाज़ेह तौर पे कमी आ चुकी है। क्रशिंग का सीजन स्टार्ट होने से इसकी सप्लाई बढ़ी है और डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन है, जिससे चीनी के फी किलो रेट में एक ही हफ्ते में जो है 20 रुपए की कमी है। ये चीनी जो पहले 180 रुपए फी किलो में फरोख्त रही थी, अब 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरों की बड़ी तादाद चीनी खरीदने में भी मसरूफ है। इस वक्त जो दुकानदार हैं, अंजुमन ताजरान से, किराना एसोसिएशन से, मोहम्मद जाहिद हसन हमारे समूह से जानते हैं, ये जो चीनी की कीमतों में कमी आई है, इसकी क्या वजूहात सामने आ रही है और आइंदा दिनों में भी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सीज़न शुरू होने के बाद 180 रुपये जो इसका रेट था वहाँ से कम होकर 160 रुपये तक आ गया। 20 रुपये पर केजी का ये इफेक्ट पड़ गया और आने वाले दिनों में और भी कमी की उम्मीद है कस्टमर्स के लिए और इनके लिए, दुकानदारों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ताकि उनके लिए ये रिलीफ है। 20 से 25 रुपए पर केजी जो पहले आम दुकानदार या आम कस्टमर जो है वो उसकी पहुंच से चीनी दूर थी, अब 160 रुपए के करीब तकरीबन चीनी बिक रही है और आने वाले दिनों में और भी उम्मीद है कि और भी रेट कम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अक्सर देखने में आता है सरकारी रेट और होता है ओपन मार्केट्स में, या वो परचून का रेट और होता है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? सरकारी रेट पे अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, बीच में तो कुछ दिन ऐसे थे कि सरकारी रेट के ऊपर चीनी बिक रही थी, सरकारी रेट पे भी नहीं अवेल थी, लेकिन अभी सरकारी रेट 179 ही चल रहा है, लेकिन सरकारी रेट से भी 20-25 रुपए किलो कम चीनी बिक रही है। तो ये एक कस्टमर के लिए और दुकानदारों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद अभी और भी आगे टाइम है, सीजन चलेगा और भी चीनी के रेट कम हो गए और उनके लिए जो है ये अच्छी उम्मीद है कि मार्केट में बहुत सी चीज़ों में रेट्स में इस्तेकाम आ रहा है। बिल्कुल, रेट्स में इस्तेकाम आ रहा है, चीनी सस्ती हुई है, क्रशिंग का सीजन शुरू है और दुकानदारों के मुताबिक आइंदा दिनों में भी चीनी की कीमतों में मजीद कमी के इम्कान है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। सर्दी में इजाफे के साथ डेरा गाजी खान में फार्मी अंडे की कीमत में भी इजाफा हो गया। 2 दिन में फी दर्जन अंडे की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हो गया। फी दर्जन अंडे की कीमत 360 रुपए तक पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आशान बुखारी से। बिल्कुल, शहर डेरा गाजी खान के अंदर धुंध पड़ने और इसके साथ सर्दी की लहर में इजाफे के बाद अंडों की कीमतों के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। फी दर्जन अंडों की कीमत के अंदर 40 रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है। फार्मी अंडों की जो कीमत है वो फी दर्जन 360 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि क्रेट की कीमत जो है वो 900 रुपए तक जा पहुंचे। इस हवाले से जो शहरी हैं डेरा गाजी खान शहर के, वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जनाब बताइएगा, अंडों की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? सर, ये जिस तरीके से माशाल्लाह से जो है लहर में सर्दी में बढ़ी है, इसी तरीके से जो है ना खुद नौश एशिया जो है वो भी महंगाई की तरफ गामजन हो चुके हैं। खासतौर पर जो अंडा था जो गरीब बंदे बड़े शौक से खा लेते थे, इजीली हो गए, अब वो जो है ना उनकी पहुंच से भी रेंज से बाहर होता जा रहा है। पहले 320 रुपये जो है ना दर्जन अंडा मिल जाता था, अब उसमें 40 रुपये इजाफा हो गया, 360 रुपये के ऊपर जो है ना रेट जाके पहुंच चुका है। क्रेट 900 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। अब जाहिर बात है मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो है ना हर चीज़ जो है जो सर्दियों के हवाले से है, ठीक है ना, सब में जो है ना इजाफा तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अब गरीब की पहुंच से जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बाहर होते जा रही चीज़ें। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि जैसे ही सर्दी की लहर बढ़ी है तो अंडों की कीमतों के अंदर भी इजाफा हो चुका है। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जिन्हें बताइएगा क्या तशवीश पाई जाती है, अंडों की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे? क्या करें, भी गरीब लोग हैं, क्या करें, और अंडे खाने की ताकत भी नहीं रह गई। सस्ता एक दिन के बाद बच्चों को खा लेते थे, अब हफ्ते बाद भी अंडा नहीं खा लेते बच्चे, क्योंकि बहुत महंगा हो गया। गरीब 1000 रुपये मजदूरी है, 1500 रुपये खर्चा है घर का, क्या अंडे खवाएं बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि गरीब तबका जो है उसकी पहुंच से अंडों की कीमतें जो है वो बाहर होती दिखाई दे रही हैं। बच्चों को जो है जो स्कूल जाते बच्चे हैं उनको सुबह के औकात के अंदर मामूल बन जाता है सर्दियों के अंदर कि उन्हें गर्म ग़िज़ा के तौर के ऊपर जो अंडे नाश्ते के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन अब अंडों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि अंडों की कीमतों के अंदर कमी लाई जाए, ताकि जो आम शहरी गरीब शहरी हैं वो भी अंडे खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया आशान बुखारी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मुल्तान में M4 और 5 को 16 घंटे बाद तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गुज़श्ता रोज 6 बजे मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। अपडेट करें, मुल्तान से M4 और M5 को 16 घंटे बाद तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गुज़श्ता रोज 6 बजे मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया। आपको बताएं, मुल्तान में M4 और 5 को 16 घंटे बाद तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गुज़श्ता रोज 6 बजे मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। यहाँ पर आपको बताएं, मुल्तान में M4 और 5 को
16 घंटे बाद तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गुज़श्ता रोज 6 बजे मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। मुल्तान शहर स्मोक की लपेट में, मुख्तलिफ इलाकों में फजा खतरनाक हद तक आलूदा। वॉल सिटी अथॉरिटी के इलाके में AQI 489 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। शहर भर में धुंध का राज बरकरार। धुंध और स्मोक के इंतजार से फजाई सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब हो रही है और इस वक्त मुल्तान में स्मोक की शिद्दत में इजाफे की बुनियादी वजूहात क्या हैं, जानते हैं सुहेरा तारिक से। बिल्कुल, आपको मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से बताएं तो सुबह से जो है वो अभी तक शहर में धुंध के बादल छाए हुए थे, लेकिन इस वक्त आसमान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा है और धुंध भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हद निगाह भी बेहतर हो चुकी है और सूरज की हल्की हल्की किरणें जो हैं वो ज़मीन पर पड़ना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अगर आपको बताएं, मुल्तान का मौसम खासा सर्द है, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी जो है उससे शहरियों को छुटकारा नहीं मिल सका है। मुल्तान शहर इस वक्त शदीद फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। मुल्तान के 4 से 5 इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक हद तक आलूदा है। माहिरीन के मुताबिक 300 पॉइंट से ज़्यादा जब एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है तो इंसानी सेहत के लिए फ़िज़ा जो है वो इंतहाई ख़तरनाक बन जाती है। मुल्तान के इलाके वॉल सिटी अथॉरिटी जो घंटा घर और मुल्तान अंदरून शहर का इलाका कहलाया जाता है, वहाँ पर AQI सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसको भी क्रॉस कर चुका है और पॉइंट्स जो हैं वो ये बताइए कि वॉल सिटी के अलावा शहर के दीगर कौन से इलाके हैं जहां पे फिजाई आलूदगी खतरनाक हद क्रॉस कर गई है? मुल्तान का इलाका मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रोड, इसके साथ साथ खानेवाल रोड और NFC यूनिवर्सिटी रोड, ये मुल्तान के वो इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा है और कैंट एरिया में 367 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस के पास 348 पॉइंट्स पर AQI रिकॉर्ड किया गया है, jabki खाद फैक्ट्री के करीब जो AQI है वो 275 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान के 5 से 6 वो इलाके हैं जहां पर इंडस्ट्री ज़्यादा हैं और इन इलाकों में ट्रैफिक का दबाव जो है वो आम रोड से कुछ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का धुआं और इंडस्ट्रीज़ का धुआं और कीमियाई मवाद मिलकर स्मोक पैदा करते हैं और शहर की फ़िज़ा इन इलाकों में ज़्यादा आलूदा जो है वो हो जाती है। सर, ये बताएं कि गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से क्या हदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें या महकमा मौसमियात की बात करें तो उनका यही कहना है कि चूंकि मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक आलूदा हो चुका है और इसके अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात हमें दिखाई तो बज़ाहिर नहीं देते, लेकिन सांस के ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, फेफड़ों को बहुत बुरे तरीके से ख़ास तौर पर मुतासिर करते हैं और खुश सर्दी की वजह से, स्मोक की वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स का रुख भी कर रहे हैं। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि जिन इलाकों में AQI मामूल से ज़्यादा है और ख़तरनाक है वहाँ पर शहरियों को एहतियात करनी चाहिए। मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम मलज़ूम कर दिया जाए ताकि ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो सांस के ज़रिए अंदर जाने से शहरियों की कुछ हद तक बचत हो सकती है। इसके साथ ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं शहरी तो वो अपने घरों में एयर प्यूरीफायर। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में फ़िज़ाई क्वालिटी इंडेक्स के बेहतर होने के इम्कानात हैं? माहिरीन मौसमियात का कहना है कि ये जो मौजूदा हफ्ता चल रहा है इसमें आइंदा आने वाले जो 2 से 3 रोज़ हैं इसमें धुंध की कैफियत बरकरार रहेगी और धुंध की वजह से स्मोक कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा ही होगी और आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 से 450 पॉइंट्स के दरमियान मौजूद रहेगा, यानी शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है। जबकि आइंदा आने वाला जो हफ्ता होगा यानी सोमवार से धुंध कम होगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होने का चांस है, लेकिन आगे आने वाले जो 4 से 5 रोज़ हैं इसमें AQI जो है वो खतरनाक हद तक आलूदा ही रहेगा। जी, आने वाले दिनों में AQI खतरनाक हद तक आलूदा रहेगा। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रहे थे।
मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी की वजह से सैकड़ों की तादाद में शहरी बीमार होने लगे। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान मुजफ्फरगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 1250 से ज़ायद मरीजों को लाया गया, जिनमें 80% बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी की वजह से सैकड़ों की तादाद में शहरी बीमार होने लगे। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में इन दिनों में शदीद सर्दी की लहर जो है वो जारी है और सर्दी की लहर की वजह से बड़ी तादाद में शहरी जो है वो बीमार हो रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं। महकमा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान धुंध और खुश्क सर्दी की वजह से 1250 से जायद शहरी जो है वो बीमार होकर अस्पतालों में पहुंचे हैं, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं। इस हवाले से महकमा सेहत हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि दिल, सांस और दमे के मरीजों को जो है वो सर्दी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। शहरी गैर जरूरी तौर पर जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और अगर जरूरी तौर पर घरों से बाहर जाना हो तो अपने सेंसिटिव हिस्सों जैसे कि गर्दन, सर और कान को जो है वो ढांप कर रखें। इस सर्द मौसम में जो कमसिन बच्चे हैं उनको जो है वो नमूनिया की शिकायत भी हो रही है, लिहाजा उनको भी जो है वो गर्म कमरे में रखें और मुतवाजिन गजा का इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से मजीद ये कहा गया है कि आइंदा 1 हफ्ते के दौरान सर्दी की शिद्दत जो है वो इसी तरह बरकरार रहने का इम्कान है और मरीजों की तादाद में जो वो इजाफा हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस सिलसिले में एक आगाही काउंटर भी कायम किया गया है, एक अलग से वार्ड भी मुख्तस किया गया है। तमाम तर डॉक्टर्स की ड्यूटियां भी जो है वो एमरजेंसी में लगाई गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को ना सिर्फ ट्रीट किया जा सके बल्कि इस आगाही कैंप की मदद से जो है वो लोगों को। आपको बताएं, लोधरा में तजावजात के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी की कार्रवाइयां जारी। जीटी रोड पर 3 दुकानें सरबमर, मुख्तलिफ दुकानों को जुर्माने भी आयद किए गए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, लोधरा शहर में तजावजात के खिलाफ जिले इंतजामिया फिर से मुतहर्रिक है। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा मोहतरमा इरम शहजादी इस वक्त मेन जीटी रोड पर मौजूद हैं और जिन दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ था वो सामान जो है वो इस वक्त ना सिर्फ कब्जे में लिया जा रहा है बल्कि दुकानें सील भी की जा रही हैं। 3 से 4 दुकानें सील की हैं। जानते हैं मैडम इरम शहजादी से, मैम तजावजात के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू होगी, दुकानें भी आपने सील की हैं, क्यों जरूरत पेश आई मैम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और सीएम साहिबा की खास हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन आप देख रहे हैं पिछले साल से ही कंटिन्यूड है। इसमें हम लोग उन तमाम दुकानदारों को प्रॉपर SOPs के तहत उनको वार्निंग्स इशू की गई, उनको नोटिस इशू किए गए, फाइन्स मुतअद्दिद होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां पर वायलेशन रिपोर्ट हो रही है उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। इस तनाजुर में अभी मैंने विजिट किया, कुछ दुकानों के बाहर नाजायज तजावुजात थी, उनका सामान कॉन्फिस्केट भी किया जा रहा है, उन दुकानों को भी सील किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बड़े आपको बताया, सरगोदा शहर के ऐन वस्त में वाक़या तारीखी कंपनी बाग में कायम ज्वेलैंड गुज़श्ता 6 माह से बंद पड़ा है। शहरियों का कहना है कि ज्वेलैंड बंद होने से कंपनी बाग की रौनकें भी बांध पड़ गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शेख उस्मान से। जी बिल्कुल, अगर हम आपको बताते चलें तो सरगोदा शहर का वाहिद तफरीगा कंपनी बाग जहां पर ज्वेलैंड बना हुआ है और यहां पर तकरीबन 6 माह से झूले जो है वो बंद पड़े हुए हैं और फैमिलीज जो है वो कहीं भी इंटरटेनमेंट के लिए यहां पर नहीं जा पा रही। फैमिली ने मुतालबा किया है कि ये जल्द से जल्द जो झूले बंद है ज्वाइलैंड इन्हें खोला जाए। हमारे साथ इस वक्त अगर हम आपको बताते चले तो कुछ फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, बच्चे हैं, इनसे हम जानेंगे बेटा क्या कहोगे आप, झूले बंद है आप आए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? हम इस हवाले से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे झूले एक भी कोई अच्छा नहीं है। जहाँ पे हम वीकेंड पे एंजॉय करने आते हैं, यहाँ पे सारे के सारे झूले टूटे हुए मिलते हैं हमें और हम यहाँ पे कहीं बैठ नहीं सकते कि तो हमारी गवर्नमेंट से ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करें और ये हमें थोड़े से झूले अच्छे बेहतर बना झूले बेहतर किया जाए। बच्चे एक और मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ, उनसे जानेंगे। बेटा क्या कहेंगे आप बताएं बेटा। कि झूले बहुत बोरिंग झूले हैं, यहाँ पे कुछ मजा आता नहीं है, कुछ भी नहीं मजा आता।